students, welcome to all of you on this channel. So our today's and last topic of this chapter, which is under discussion, it remains applications of magnetic susceptibility. So the first application is to confirm the structure of a molecule. So किसी भी molecule ਦੀ ਜਿਹੜੀ structure है ਉਹਨੂੰ confirm ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ magnetic susceptibility ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ help ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि जो magnetic susceptibility है ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ symbol ਦੇ ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ, this is an additive as well as constitutive property. So this is very important. एक additive property है एंड एक साइंटिस्ट सीगा पास्कल जिसने की किया जे डिफरेंट जेड़ा मतलब डिफरेंट एटम्स या फिर डिफरेंट एटम्स दे विच है सिंगल बॉन्ड है डबल मल्टीपल उन्हां दे करस्पॉन्डिंग्स उन्हें की कीती सी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी जेडी एक्सपेरिमेंटली जेडियां डाटा दिता मतलब एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज दित्तियां सी। सो हुण आपां इहदी जेडी बेंजोइक एसिड है इहदी जेडी स्ट्रक्चर है वो कंफर्म करनी है थ्रू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो आपां मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर 7 कार्बन एटम्स ही देखनी है। 6 कार्बन एटम बेंजीन रिंग दे विच 7 इत्थे है। सो 7 इनटू ए जो वैल्यू है ए हैगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू कार्बन एटम। सिमिलरली अपने को 6 हाइड्रोजन हैगे ने 1 2 3 4 5 एंड 6 इत्थे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। 6 हाइड्रोजन करके 6 इनटू this value corresponds to hydrogen atom मतलब ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that is -69.05 into 10 raised by -6 and जो observed value है जो actual value है benzoic acid ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਇੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ कैलकुलेटेड वैल्यू ते ऑब्जर्व्ड वैल्यू नु ए नियर बाय लाई करदे ने इस करके बेंजोइक एसिड दी जिहड़ी स्ट्रक्चर है दैट इज कंफर्म्ड कि बेंजोइक एसिड दी स्ट्रक्चर ऐदा ही होएगी जिस दे विच 7 कार्बन एटम होणगे 6 हाइड्रोजन होणगे 1 ऑक्सीजन होगा। ए जिहड़ा पॉइंट है तुसी नोट करना ए जो मैं ऑक्सीजन एटम दा लिखिया जो ए वाला ऑक्सीजन एटम है ए हैगा अल्कोहल दे विच एंड जो ए वाला ऑक्सीजन एटम है दिस इज इन एसिड्स। सो इत्थे देखो अपने को ए वाला अल्कोहल बन रहा है ए वाले ऑक्सीजन करके जिहड़ी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू होगी दिस वन एंड एसिड करके कार्बोनिल जिहड़ा ग्रुप हुंदा है एसिड्स दे करस्पॉन्डिंग हुंदा इहदे करस्पॉन्डिंग जिहड़ी वैल्यू है दैट इज -1.5। सो इस वे दे नाल आपां जिहड़ी स्ट्रक्चर है कंफर्म कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल दी। ठीक है। And the second application is in calculation of the number of unpaired electron in a molecule or ion. So we discussed in previous chapter about this formula. So knowing the value of molar magnetic susceptibility, the number of unpaired electron, where the small n represents the number of unpaired electron. So according to this formula, if we know the value of magnetic susceptibility, then we can easily find out the value of number of unpaired electron because the value of these are constant. So इत्थे example दी हुई है ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन दी जो molar magnetic susceptibility है that is this. So जो आप इहदी values formula दे विच put करांगे and then Boltzmann constant and particular temperature ते Avogadro's number दी value put करांगे ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ paired and paired and these two ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ this electron and this electron they both are unpaired electron। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ paired electrons they are also paired and a वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिन्हों मैं ज्यादा डार्क शो किया है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो टोटल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो ये सिगियां बेसिक 2 एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सिमिलरली अदर एप्लीकेशंस भी जिहड़ियां होणगियां। The third application is in the study of
coordination compounds. So how magnetic susceptibility helps in the study of coordination compounds. So firstly you should know that what are coordination compounds. This is under the branch of inorganic chemistry. So magnetic susceptibility the help ਦੇ ਨਾਲ according to this formula we can calculate the value of number of unpaired electron in the complex. So अगर आपको किसी भी coordination compound या फिर complex ਦੇ ਵਿੱਚ number of unpaired electron पता चल जाएंगे then ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ corresponding ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ structure है ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. We can find out the structure of complex if we know the number of unpaired electron. For example ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ magnetic susceptibility of complexes. iron ਦੇ complexes ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. iron cyanide and Fe(F6) negative. ठीक है. सो इन्हां दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ जो मैग्नेटिक susceptibility है इन्हां दो complexes ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ n ਹੈ number of unpaired electron ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1 electron and ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ number of unpaired electron ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ 5 n is equal to 5. सो जिवें आपां देखदे हां आयरन दी इलेक्ट्रॉनिक आयरन दा एटॉमिक नंबर 6 सो दी कन्फिगरेशन की हुंदी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 and 4s2. ओके सो हुण जदों आपां आयरन 3 दी गल करदे हां तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने आ दो इलेक्ट्रॉन इत्थों रिमूव हो जाणगे एक इलेक्ट्रॉन इस साइड तो रिमूव हो जाऊगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d5 3 पॉजिटिव का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं दो इलेक्ट्रॉन 4s चो रिमूव होंगे एक इलेक्ट्रॉन d चो मतलब आपां की कर रहे हैं जे आपां कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्सेस दी स्टडी दे विच मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी जेडी है वो एप्लीकेशन देख रहे हैं. देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो आपां नूं ये पता चल गया कि ए वाले आयरन दे कंप्लेक्स जिथे साइनाइड लगे हुए उथे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ए वाला आयरन दा कंप्लेक्स जिथे फ्लोरीन लगे हुए इथे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो हुण आपां आयरन दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख ली तां जदों आयरन साइनाइड वाला कंप्लेक्स होगा उस केस दे विच आपां सिर्फ यही वाला पार्ट देखना 3d5 d दे विच जिहड़े 5 ऑर्बिटल हुंदे ने एंड 4s then further की होगा 4p इन्हां दे विच 4s 4p दे विच कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हैगा. सो जदों साइनाइड है तां उत्थे एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन दा मतलब 3d5 5 इलेक्ट्रॉन किस वे दे नाल अरेंज होण कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचे 1 2 3 4 5. सो ए हैगा इस केस दे विच जिहड़े इलेक्ट्रॉन ने ओ की होए होए ने पेयर अप होए होए ने बिकॉज इत्थे की हो गया सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड Fe(F6) 3 नेगेटिव इस केस दे विच की होगा इस केस दे विच भी सेम ही आ 3d दे 5 ऑर्बिटल 4s दा 1 एंड 4p दे 3 ये तो सारे एम्प्टी ने. हुण 3d इस केस दे विच 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने ते टोटल 3d 5 ही ने तो सारे इस वे दे नाल जिहड़े अरेंज होणगे मींस इत्थे की ने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल. सो ये जिहड़ी आपां नूं पता चलिया कि जो साइनाइड लग्या होया उदों इलेक्ट्रॉन पेयर अप होणगे एंड जो फ्लोरीन लग्या होया उदों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होणगे. ये आपां नूं पता चलिया थ्रू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके सो दिस इज द एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्सेस. सिमिलरली एक निकल दी एग्जांपल आ जांदी है जे निकल जिहड़ा हैगा कंप्लेक्स निकल दे भी जिहड़े कंप्लेक्सेस ने निकल साइनाइड वाला होगा तो डायमैग्नेटिक होणगे मींस उत्थे जिहड़े इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ने उन्हां दी वैल्यू नहीं होगी. अगर निकल क्लोराइड है तो उत्थे की है पैरामैग्नेटिक होगा. सिमिलर है जिवें आपां आयरन दा केस कीता.
एक होर एप्लीकेशन है इन एस्टैब्लिशिंग द फॉर्मूला ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। सो हुण कुछ कंपाउंड्स ने जिन्हां दा जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा वो आपां नूं देखण नूं थोड़ा जिहा अबनॉर्मल लगदा, ठीक है। जिवें हाइपो फॉस्फोरस एसिड हो गया। तो जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज H4P2O6 इंस्टेड ऑफ H2PO3 मींस ए फॉर्मूला नहीं हुंदा, ए वाला फॉर्मूला हुंदा। व्हाई इट इज सो, ए भी रजे आपां नूं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी तो ही पता चलदा, बिकॉज अगर ए वाला फॉर्मूला हुंदा तां इत्थे ऑड इलेक्ट्रॉन होने सी, लेकिन आपां नूं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी तो पता चलिया कि इस केस दे विच अपने कोल इलेक्ट्रॉन्स की ने ऑड नहीं है, मींस पेड ही ने, तां इस करके आपां ए वाले फॉर्मूले नूं डबल कर देंगे। एदा डबल कर देंगे तां H4P2O6 है। जिवें आपां मर्क्यूरस क्लोराइड जिहड़ा तुसीं स्टडी कीता होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस जो सॉरी दी स्पेलिंग हुंदी है मर्क्यूरस क्लोराइड, उसका फॉर्मूला हुंदा है Hg2Cl2 नॉट HgCl। ए वाला फॉर्मूला सही हुंदा क्योंकि इहदे विच जिहड़े ऑड इलेक्ट्रॉन हुंदे ने बट एक्चुअल च ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं हुंदे। सो ए मतलब आपां नूं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दी हेल्प नाल आपां नूं कुछ जिहड़े कंपाउंड्स ने उन्हां दे फॉर्मूलास दी भी जिहड़ी आ इंडिकेशन हुंदी है, ठीक है। नेक्स्ट है इन एक्सप्लेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन molecule. So same ही है भी existence of odd electron molecule. So वो वाले compounds जिन्हां दे विच odd electron ने that are expected to be paramagnetic. Okay, जिवें आपां gaseous compounds की गल करदे हां तां जिवें नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। सो इन्हां दे विच जिहड़ा की ने ऑड इलेक्ट्रॉन्स पए हुए ने वो पैरामैग्नेटिक ने। सो ये आपां नूं किवें पता चलदा है, जो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपां नूं अगर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पता होगी तो आपां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पता कर लांगे। सो जिथे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है देन ओदा मतलब की है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। सो दैट्स हाउ कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दी हेल्प दे नाल आपां पता कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स दे विच इलेक्ट्रॉन्स ने वो ऑड हैगे ने या इवन ने। ओके, लास्ट एप्लीकेशन इज इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। In explaining the formation of free radicals. So इस दे विच की हुंदा रजे कुछ जिहड़े हुंदे ने एरोमेटिक कंपाउंड जिहड़े बहुत ही मतलब सब्स्टिट्यूटेड हुंदे ने जिन्हां दे विच बहुत ब्रांच्ड चेन जिहड़े एटम्स हुंदे ने। सो उन्हां दी टेंडेंसी हुंदी आ कि वो डिसोसिएट होके की फ्री रेडिकल बना लेंदे ने, ठीक है। सो जो फ्री रेडिकल दी एग्जिस्टेंस हुंदी आ वो भी आपां नूं पता चलदा, फ्री रेडिकल जिहड़े हुंदे ने वो भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है जिहड़ा वो शो करदे ने। सो फ्री रेडिकल्स भी शो करदे ने अपने कोल paramagnetism, which is explained on the basis that free electron, because free radicals contains odd electrons. So as I already discussed कि जिन्हां कोल odd electron हुंदे ने वो paramagnetism शो करदे ने। सो फ्री रेडिकल्स को ऑड इलेक्ट्रॉन हुंदे ने, इस करके वो भी पैरामैग्नेटिज्म वाली जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो शो करदे ने। सो ओ वाले सबस्टांसेस दे विच जिहड़ी आ आपां मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दी जिहड़ी मेजरमेंट हुंदी आ वो आपां नूं पता चलदी आ। इस दे विच तुसीं फाइंड आउट करना
if we want to calculate the percentage dissociation of substance into free radical, calculation of percentage dissociation of the substance into free radical. So this is important कि आप ये पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है 50% या 60% या 70% मतलब किन्ने परसेंट जिहड़ा वो डिसोसिएट होया इनटू फ्री रेडिकल्स किवें आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओदे लई रजे एक फार्मूला हुंदा नोट डाउन कर लो सो द फार्मूला इज observed magnetic susceptibility upon calculated magnetic susceptibility into 100. So this is the formula to calculate the percentage dissociation of the substance into free radical. So इस दे लिए आप एग्जांपल ले रहे हैं कि जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हुंदी है अल्फा नेप्थाइल डाईफिनाइल मिथाइल उसकी जो वैल्यू है दैट इज 140 into 10⁻⁻⁶ बट जो उसकी थ्योरेटिकल है जो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है फॉर अ single unpaired electron that is 1260 into 10⁻⁶ थ्योरेटिकल का मतलब की हो गया दोस्तों थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू सो जो परसेंटेज डिसोसिएशन है उसका फॉर्मूला की सी रजे ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड कितनी है 140 into 10⁻⁻⁶ अपॉन कैलकुलेट कितनी है 1260 into 10⁻⁻�6 into 100 ये 10⁻⁻�6 कैंसिल आउट हो जाएंगे सो आफ्टर सॉल्विंग द रिजल्ट विल बी 11%. सो कहने का मतलब ये है कि जो फ्री रेडिकल दी फॉर्मेशन हुंदी है ओदी जो एक्सप्लेनेशन करदा वो भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो पता चलदी है. देखो हुन अगर आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी वैल्यूज पता होंगी ऑब्जर्व ते कैलकुलेटेड फिर ही आप पता कर सकते हैं कि परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस इनटू फ्री रेडिकल कितना है. जिवें इस केस विच 11% जिहड़ा ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ 11% ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी. सो कहने का मतलब ਆਪਾਂ फ्री रेडिकल ਦੀ फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ਦੀ वैल्यू की होगी पता होगा. So these are the applications of magnetic susceptibility. These are important according to your exam point of view. That's it for the day class.